Hannah. Yes. Hi Gina. Hi Jay. How are you? Good, very good. How are you? Good. Great. मलेरिया से रिकवर हो गया? डेंगू. अच्छा डेंगू से रिकवर हो गए. मुझे आज तक सच में कुछ खास डिफरेंस मुझे नहीं पता. अपेरेंटली मलेरिया इज वर्स. तो मतलब अच्छा है कि डेंगू ही हुआ था. अच्छा मेरे को मलेरिया हुआ था लास्ट ईयर. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गेट बैक? आई एम स्टिल गेटिंग बैक टू दैट. अभी भी मेरे एंकल में पेन. See, that's why malaria is worse. अरे malaria is literally worse. May I know more about you? Like, what is your profession? As far as I know, right now you are the physiotherapist. Sorry, psychotherapist. You know that English thing. Yeah. I'm very bad at that English. I always understand. Thinking I provide physiotherapy, so it's okay. So the physiotherapist and psychotherapist both. Like you know, writing things, but the writing thing is very much similar for me. Chalega. So what is it exactly? Yes. You want to hear about what psychotherapy is or what I do? What you do? Okay. So after I finished my masters in counseling psychology. Okay. From St. Xavier. I've been working, I got my job through placements. I've been working in an organization for the last 2 years and continuing. So this is my 3rd year. Okay. But 3rd year I decided कि बस इतना नहीं चलेगा, मुझे और करना है. Okay. So then I started private practice. Started मतलब अभी just August में I announced कि okay I'm taking my own clients. Organization through clients will come to me. Okay. फिर once a day also teach. I'm a professor also, ऐसा बोल सकते हैं. You're professor at Bandra में college में RD National College psychology, counseling psychology. अच्छा psychology. Masters के बच्चों को I teach 1 paper. Oh wow. So that's. I'm very intrigued to know that you are a psychotherapist. Psychologist बोल दो. Psychologist, yeah. Psychologist sounds better. So it's my elder brother. उसका ड्रिंकिंग का हैबिट बहुत है. आई स्टिल रिमेम्बर जो वो पहली बार पी के आया था तो वो बहुत चिल्लाने लग गया घर पे. वो अनयूजुअल बातें करने लग गया और भाभी पे चिल्लाने लग गया, मामा पे चिल्लाने लग गया. आई डोंट नो फॉर व्हाई. ठीक है. फिर दूसरे दिन उठ के ये था कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा. ठीक है. बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, कभी ऐसा नहीं होगा. 3 दिन तक ऐसा नहीं हुआ. 4था दिन भी ऐसा नहीं हुआ. 5वां दिन वापस से सेम कंडीशन. उसके बाद सेम रिपीटेशन मोड में आया वो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा. फिर वो जो 3 से 4 दिन का गैप था कम होके 2-3 दिन का हो गया. फिर वो रिपीटेड मोड में ऑलमोस्ट एवरीडे होने लगे. इवन दो ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेस कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. वो 2-3 बार बीमार भी पड़ चुका है, बट स्टिल he is going through the same cycle again and again. That I really wanted to understand his deep level of कह सकते हो आपकी माइंड कि वो ऐसा रिपीटेड मोड में क्यों कर रहा है. करेक्ट. एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है. ये बहुत सालों से पी रहा है क्या? Like he's been drinking for a while now? Yes, he has been drinking for a while now. So the thing because it sounds like we're moving towards alcoholism, like addiction, for example. Yeah, that is just an addiction or is just something which his mind is triggered or trauma, anxiety, anxious. I don't. So why he drinks is a very important piece of this. So जैसे तो आपने कहा ना कि trauma, anxiety, stress कुछ भी हो सकता है. That could be the reason he started drinking. Okay. So once you drink, it's like it's doing something to your brain. It's giving you a numbing sensation. You're not feeling the stress as much. You're not feeling the anxiety as much. You're not feeling actual life में जो भी stress हो रहा है उससे एक distraction हो गया ये drinking. Okay. So then that becomes okay. It feels good to your brain for the momentary time. Okay. तो उसके बाद लेकिन of course consequences होते हैं and then you feel guilty. When the second you come back to your normal self, आपको guilty feel होता है and then you feel like नहीं मैं अभी जो आपने बोला it is a loop. लेकिन फिर क्या होता है? withdrawal symptoms आ जाते हैं. withdrawal symptoms मतलब जो चीज हमने बहुत टाइम से कंज्यूम किया है उसका अगर हमने अचानक से छोड़ दिया, उसका हमने सही ट्रीटमेंट से स्लोली नहीं छोड़ा, देन उसका वो जो इफेक्ट था हमारे ब्रेन का वो ब्रेन को वापस चाहिए होता है. दैट प्लेजर, दैट कामनेस, वो नम्बनेस मुझे चाहिए. बिकॉज विदाउट इट वट एवर द रीजन वाज, मे बी द एंग्जाइटी और द स्ट्रेस, इट कम्स बैक एंड इट फील्स हॉरिबल कि मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है. सो देन आई वांट द easy way to deal with it again. Okay. So it's not कि this is something generally that's both biological and emotional. क्यों उन्होंने स्टार्ट किया एंड अभी ये जो गिल्ट बार बार उनको हो रहा है या फिर वो जो लूप में अभी स्टक है, इसको एक लूप बोल सकते हैं कि ही इज ड्रिंकिंग, ही इज कमिंग बैक, ही इज फीलिंग गिल्टी, देन ही इज ड्रिंकिंग अगेन. तो व्हाई इज ही नॉट एबल टू? उसमें लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ही इज नॉट मोटिवेटेड. क्या
उसको अपने परिवार से प्यार नहीं है क्या, व्हाई इज ही डूइंग दिस, राइट, बट देयर इज समथिंग दैट्स आल्सो वेरी बायोलॉजिकल इन दिस. उनके ब्रेन में ऐसा असर हो रहा है द कंसिस्टेंट ड्रिंकिंग का, दैट ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. तो इसीलिए दैट्स व्हाई द ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसको मैनेज करने के लिए मेडिकेशंस वगैरह होती है, थेरेपी होती है. That's it. Because right now he's relying only on his will. Oh, yeah, to feel better. Right. So, hard. do you think he can be cured, or maybe he can be in that position that where he can control his drinking habit? Yeah, definitely. Addiction can totally be treated. लेकिन उसका ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा. We can't just be like, okay, उसको हम समझाएंगे तो ठीक हो जाएगा. फ्रेंड्स, फैमिली, समझाने से नहीं ठीक होगा, क्योंकि तो समझ रहा है. ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रहा है. Right. But when that peak moment comes, where he usually drinks or where he's feeling stressed out, he doesn't know how to deal with the problem in any other way. So उनका जो natural modality है वो उसको ही जाएंगे पीने का. समझा मैं. So that definitely treatment is possible. उसका de-addiction का एक पूरा field है psychology में. Okay. So that is definitely possible, and come back to full. It will take time, depending on how long he's been drinking, why he's been drinking, how much support he has, like with family. समझा मैं. उसके हिसाब से he can come back fully. It will take long. It will be difficult in the beginning. लेकिन it is definitely possible that he comes back to full life. पूरा मतलब feeling better ऐसा हो सकता है. I don't think कि मेरे home town में वहाँ पे psychotherapist होगा, because that is a small town and it's really difficult to find one there. Right. But देखते हैं. हमारे यहाँ ना ये it's not just a story of my brother. It's almost the story of every household in my village. Right now, almost every family is dealing with some kind of the same situations. Each home, I can say that. Right. तो मैं तो मतलब काफी ज्यादा इन सब चीजों में I really wanted to understand. अभी इस बार मैं घर भी गया था ना, तो मैं अपने भाई के साथ बैठा, ऐसे मैं और वो आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. तो मैंने उसको पूछा, अच्छा तेरे को इतना पता रहता है सब कुछ कि यार जो भी कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसकी वजह से तुमको बीमार भी पड़ा है, तेरा शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया है, उसके बावजूद भी तो दोबारा क्यों पीता है? ठीक है. तो बोलता है यार मन नहीं करता मेरा पीने का. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट पता नहीं क्यों शाम होते होते सुबह से सोचता हूँ कि नहीं पीऊंगा, बट शाम होते होते ऐसा लगता है ना कि चाहिए अभी बॉडी को, बॉडी दिमाग मतलब गला में कुछ होने लग जाता है. एंड फिर ऐसा, और दोस्त यार का सर्कल भी वैसा है कि उनके साथ बैठो, किसी ने बोल दिया अरे चल ना उधर चलते हैं, बस फिर क्या एक बार चले गए तो हो गया फिर काम. बिल्कुल सही बात. ये एडिक्शन का यही एक प्रॉब्लम होता है कि एक्सटर्नल क्यूज, जैसे कि जो हम जनरली जिस तरह पीते हैं उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है. जब हम डी एडिक्शन पे काम करते हैं, ये हटाने की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल समबडी हु वांट्स टू स्टॉप स्मोकिंग, जो रोज 4 बजे चाय पे लेकिन ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ जाके स्मोक करता है, उनको हम फिर जब डी एडिक्शन की बात करते हैं तो वी टेल देम ओके अवॉइड दैट ग्रुप फॉर सम टाइम, बिकॉज इफ यू गो देयर एंड से मैं नहीं स्मोक करूंगा, यू देयर एंड यू रिमेंबर, योर बॉडी रिमेंबर्स कि मतलब व्हाट इज इट लाइक टू बी देयर. एक चलो ले लेते, एक में मैं रोक दूंगा, बट देन इट्स लाइक अ स्लिपरी स्लोप. तो इट इज वेरी मच लाइक बहुत ऐसा सिस्टमिक, इट इज नॉट जस्ट इंटरनल, सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे नहीं होता. प्लस आजकल तो ये भी बोलते हैं कि एडिक्शन एज अ कॉन्सेप्ट ओनली, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है. एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग. And why are they drinking? Maybe there is poverty, maybe there are financial stresses, maybe there are stresses that are not being able to, कोई मैनेज नहीं कर पा रहा, फैमिली स्ट्रेस कोई समझ नहीं पा रहा, कोई बात करने वाला नहीं है. सो ये जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडिक्शन इज द सिम्टम. बीमारी कुछ और है, बीमारी शायद एंजाइटी होगी, बीमारी शायद सोसाइटी भी हो सकती है. एग्जैक्टली सोसाइटी के फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस इज वेरी, इट इज वो सब साथ